National Stock Exchange of India Limited. This is a government of India owned biggest national stock exchange of India. Its name itself says national. Then regional stock exchanges were one by one closed down. A time was also when few of the national stock exchanges came together, joined their hand, and did set up interconnected stock exchange of India. The problem is that if your company is registered in Delhi, the people from Kerala region cannot trade in your share. This was the problem. And if a company is registered in Mumbai, so sitting in Delhi Stock Exchange, you cannot trade in those shares. These were the hurdles. And the whole country was not being used as the customer base of securities. तो सेबी ने नियम बना दिया कि इन इंडिया ओनली नेशनल नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विल बी ऑपरेटिंग. पहला ये खुला. उसके बाद बीएससी वाज देयर ऑपरेटिंग एज ए नॉन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. The oldest stock exchange of India. It was a private business. It was a regional stock exchange, Bombay region. It was advised by what you call advice order. You first convert into national stock exchange and then convert yourself into a limited company, public limited company, which they will do soon by 2000. These are two biggest stock exchanges of India, one under government of India control, another in the private sector control. They are limited company, they have their own shares. Clear? अब इंडिया में चॉइस है कि any company which is going to sell shares to public will have to pick at least one national level stock exchange where their share will be listed. But you can opt for more than one. Huh? So the major companies of India which have their share floated, they are listed here also and here also. If you have purchased the share of that particular company, so on a particular day, if you want to trade in the share, you have got two platforms. Just have a look where price is coming better. You can liquidate your share there, provided your company is listed on both of the platform. ये शुरू हो गया. अब इनका जो इंडेक्स है, इनका पहला इंडेक्स is known as NSE 50. अब इंडेक्स बनती कैसे है? Once we talked about index when we were discussing about Human Development Index. There were three variables. Variables were running in single digit, so we picked the scale of 1. याद आ रहा है? In case of inflation, variables run in 3 digit. The world picks the scale of 100. But here, number of listed companies run in 4 digit, in 1000. So we pick the scale of 1000. है ना? And जितनी कंपनी लिस्टेड होगी, we will allot individual weights to them. All weights added should not cross 1000. सेम वही कहानी है. और उनको वेट कैसे अलॉट करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर टोटल टर्नओवर ऑफ द शेयर. स्क्रिप्ट कितना शेयर कितना बिकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दे आर अलॉटेड देयर वेट. एज वी अलॉट वेट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, कि हायर द प्रोडक्शन हायर द वेट. इन केस ऑफ WPI, in case of CPI, higher the consumption of the family budget, higher the weight. ये difference है. WPI में from production side and in CPI from consumption side. याद है ना? ऐसे होता है. Here what happens कि उनका टर्नओवर कैसा है? कंपनी का टर्नओवर नहीं, शेयर का कारोबार कितना हो रहा है. कंपनी का टर्नओवर कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट अबाउट ट्रेडिंग ऑफ दिस शेयर? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेट्स आर अलॉट. Out of all companies listed there, 50 selective companies are picked by NSE and they are allotted into one group that is known as National Stock Exchange 50, which was called as Nifty 50, है ना? And finally will become popular as Simple Nifty.
This is its real name, this is its pet name, and this is short of the pet name. निफ्टी निफ्टी मतलब एनएससी पे लिस्टेड सारे कंपनी में से ऊपर के 50. इट डजंट मीन कि दिस 50 कंपनीज आर मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, वी शुड बाय देयर शेयर फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. वन ऑफ इट माइट बी वेरी लॉस मेकिंग, ऐसा हो सकता है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड देयर अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ their weight in India's stock market at NSE platform, है ना. They have a broader index. जो broader index है that is NSE 200 and another is NSE 500. इसका एक्चुअल नाम हुआ करता था, ये तो अभी नाम है इसका नाम हुआ करता था S&P NSE 50. S&P स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर. भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, प्राइवेट सेक्टर की, उसने इंडेक्सिंग बनाने का काम शुरू किया. तो उसने एक्सपर्टीज खरीदा स्टैंडर्ड एंड पुअर से. माने स्टैंडर्ड एंड पुअर वाज नॉट इट्स पार्टनर. दे सोल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू आइडिया टू इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी रिक्वेस्टेड S&P कि कैन दे यूज इट्स नेम. S&P told you, okay, you can use. But after few years, there was some tussle, so they withdrew their name. Finally, they withdrew their name and the share index became only NSE 50. Rather, it has been developed by the technology of S&P America, the famous rating company. इसका थोड़ा सा कहानी है पीछे से. तो they are only known by Nifty 50, NSE 200, NSE 500. अब Government of India wished that this should emerge as the representative share index of India. If somebody sitting outside India wants to know how Indian share market is performing, so they will have their eye on performance of NSE 50. This was the attempt of government of India. समझ रहा है ना? And you know कि this is a new stock exchange which came in 91. ऑपरेशन शुरू हुआ 91 में. ये पुरानी चीज नहीं थी. But they were there since long. इनका एक इंडेक्स था that is BSE 30. BSE 30. The 30 share index of Bombay Stock Exchange. समझ रहे हैं ना? ये पुराना इंडेक्स है. This 30 share index is also known as BSE sensitive index. And shortly simple Sensex. सेंसिटिव इंडेक्स है ना. तो इसका लिया सेंस और इसका लिया डेक्स, अब बना दिया सेंसेक्स. उसका लिया एक्स, सिर्फ एक्स, सेंसेक्स. सेंस एंड एक्स, सेंसेक्स. Before arrival of NSE 50, when NSE was no more there, BSE 30 was representing India's stock market. Rather, it was a regional stock market. ठीक है. लेकिन reputation इसका था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स देख लीजिए, भारत के शेयर बाजार का खास्ता हाल पता चल गया. व्हाई? बिकॉज शेयर्स वेयर नोन टू इंडियंस अराउंड ओनली मुंबई रीजन. Rest of India hardly knew what shares are. Neither they got the chance and avenue to put money in a stock market. So in India, setting up limited company and selling share to mobilize capital, investable capital, was very limited in nature because whole country was not the part of India's share market. देख रहे हैं ना? जब सेबी ने कहा कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट कर ही नहीं सकता, तो ये तो नेचुरल डेथ उनका हो रहा था बिकॉज इंडिया वाज गेटिंग नेशनल लेवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दे वर नॉट गेटिंग कस्टमर्स. तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया, मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना का बंद हो गया, लखनऊ का बंद हो गया, धीरे धीरे सब बंद हो गया. अब इनके बड़े बड़े हॉल थे, क्योंकि पहले कारोबार होता था कि बड़े हॉल में ट्रेडर्स जुटते थे, ब्रोकर,
और बोली लगाते थे चिल्ला चिल्ला के, है ना। तो सब का सब आज के डेट में गेहूं चावल का गोदाम हो गया है। दिल्ली का तो वो भी गोदाम बंद है। नोबडी गोज टू लुक आफ्टर ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये इमर्ज कर गए, नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज हो गए। ये एग्जाम में इट हैज बीन आस्क्ड वंस और ट्वाइस, समझ रहे हैं ना। आपको समझना है कि द एम ऑफ NSE 50 एंड BSE 30 आर सेम। There are thousands of companies listed here also and here also. They don't tell you a story of all companies. They tell a story of only 30 companies there and 50 companies there. लेकिन you can gauge the mood of a stock market by having the data of BSE 30 only and NSE 30 only. For example, अब iron and steel company is put here one. तो if iron steel company share is doing well, it means कि iron steel must be in good demand. तो iron steel based other companies must be performing well. This is how a general idea we take out of that. अब cotton thread manufacturing company is there, कि सूती धागे बनाने वाली कंपनी। अब सूती धागा बनाने वाली कंपनी का शेयर खूब एक्टिवली ट्रेडिंग हो रहा है, तो इट्स शेयर मस्ट बी इन डिमांड। So this company must be operating in profit, or shareholders have an opinion that this company will reap profit in coming days. The reason people are buying their shares to reap the higher dividend and profit. तो आप कॉटन इंडस्ट्री का जायजा का अंदाजा लगा सकते। दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली कि व्हेन फॉर कुकिंग राइस देयर वाज नथिंग लाइक प्रेशर कुकर। शायद आप उस जमाने को नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे हुए हैं कि देन राइस वाज कुक्ड इन ए, क्या कहिएगा उसको, बर्तन होता था ना इतना बड़ा सा पॉट, ए बिग पॉट। इट यूज्ड टू बी ऑफ अर्दन आल्सो, मिट्टी का बना हुआ घड़ा हुआ करता था, बट देन अल्युमिनियम कैन, पीपल हैड ब्रास, है ना। तो सपोज कि 1 kg राइस अ कुक इज कुकिंग, तो देयर आर लैक्स ऑफ राइस, इंडिविजुअल राइसेस, हाउ मच राइस, हाउ मच वाटर, and how long it should be cooked. Even then you must have some idea कि it should not be getting wasted, it should not remain unboiled, it should not be over and excessively boiled। ध्यान रखते थे। तो क्या करते थे कि चावल कुक हो गया होगा, बनाने वाले को अंदाजा हो गया कि अब ये पक गया होगा, अगर छोड़ेंगे तो ये खराब होगा, और कच्चा भी चावल नहीं होगा। तब कुछ चावल का दाना निकाल के ऐसे करते थे ना, अगर सब दाना को चेक किया है तो 2 सप्ताह लगेगा। तो ऑन दिस बेसिस कि कुछ दाने पक गए, अब ऑफ कर देंगे तो थोड़ी देर में सारे पक जाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ BSE 30 एंड NSE 30 कि आपको पूरे बर्तन के चावल का हालात का सेंस हो जाता है। ये है बेसिकली, और इसको वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलेगा कि इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सच एंड सच स्टॉक इंडेक्स, है ना। ये कंपीट करना शुरू करता है इससे, है ना, क्योंकि दिस इज सीनियर एंड दिस इज जूनियर। क्लियर। अब आने वाले समय में इनका एक आता है BSE 200, BSE 200, इसमें ये 30 इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे दिस 50 इज पार्ट ऑफ दिस 200 is part of this. Base is getting broader and broader. You get better picture. More number of industries. उसी तरह से these 30 are included in 200. इनको कुछ दिन प्रॉब्लम हो गया, इनको लगा कि I might be beaten by NSE 50, तो इन्होंने 2-3 साल के लिए इसको बड़ा करके 50 कर लिया। ठीक है, चूंकि ये लिमिटेड कंपनी है, दे कैन डिसाइड, सो दे हैव टू जस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम सेबी कि हमने ऐसे ऐसे वेटिंग दिया है, ऐसे ऐसे किया। ठीक है, बट इट कुड नॉट फंक्शन वेल, तो दे वेंट बैक अगेन टू 30। समझ रहे हैं ना। नहीं तो चाहे थे कि हम भी 50 रखें, बिकॉज दे डोंट लुक मच कंपेरेबल। ये 50 का है, वो 30 का है, तो बोथ बिकेम 2 इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। अब आपको समझना है कि विच यू शुड कंसीडर इंडिया रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक इंडेक्स। इसके बाद इन्होंने बनाया, इन्होंने एक तीसरा बनाया है, वो है बेसिकली डॉलेक्स। DOL,
DOLL stand for dollar, simply put dollar. तो डॉलर बेस्ड शेयर इंडेक्स है, डॉलेक्स, समझ रहे हैं ना? ये क्या है? हैव यू गॉट सम आइडिया? This is rupee denominated index, rupee denominated, this is dollar denominated, है ना? डॉलर बेस्ड index. Rest of 5 are rupee based indexes. And you invest in rupee, index went up, so you can sense how much you have earned in rupee term. But here, investment is done in rupee, but investors are not coming with rupee. They come with dollar, convert their dollar into rupee and invest in our stock market. Clear? So on a particular day, suppose ki share index went up and those who invested in rupee, they are earning profit. But these people may not, foreign investors. Because on a certain day, suppose share index went up and his share gave 10% return in rupee term. But on same day, if rupee depreciated by 10% against dollar, then he did not earn anything. People who invested in rupee, they earned. But people who invested converting dollar into rupee, they did not earn anything. So when foreign investment in India's share market was allowed in 1994, so that foreign investors get sense ki how their money is doing in India's share market, we were bound to develop a new kind of index. That was dollar indexed index of BSE, but it is basically dollar version of BSE 200. यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका होगा, क्योंकि इसमें भी एक से अंत में, समझ रहे हैं ना? तो we start thinking and visualizing कि it may be dollar version of Sensex. No, it is dollar version of BSE 200. क्योंकि it gives foreign investors the idea that how their money, how their investment is performing in a stock market of India. चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो हमारे मार्केट से थोड़ा सा अलग है. चाइनीज स्टॉक मार्केट has two segment. One, investment is done in foreign currency and in another investment is done in Chinese currency. तो चाइना has got two separate stock market. अमेरिकन डॉलर लेके आते हैं, उनको लोकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना होता. दे इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट. तो उनको परफॉर्मेंस सीधे दिखता है कि हाउ देयर मनी इज ग्रोइंग और फॉलिंग डाउन. लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वी हैव क्लब्ड बोथ द मार्केट. हमने मजबूर कर दिया है कि आप भारत के शेयर बाजार में रुपए के अलावा किसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे कम विद डिफरेंट करेंसीज, deposit their currency in their bank accounts, withdraw in rupee and invest in India's stock market. क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का ये इंडेक्स ये बताता है कि इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स इन रूपी, हाउ योर इन्वेस्टमेंट इज डूइंग. बट ऑन ए सर्टेन डे रिटर्न माइट बी कमिंग इन रूपी, that on that particular day rupee might be losing value against dollar. So your profit is being more than make up by the loss you are incurring in case of currency market. तो उनको अंदाजा होना चाहिए ना कि हमारा शेयर 10% बढ़ा, लेकिन रुपया डॉलर के सामने 10% गिर गया. अगर 12% गिर गया तो दे आर रनिंग इन नेट लॉस ऑफ 2%. इन केस ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट. रुपये में लगाए 10% बढ़ा, 10% गेन हो गया. लेकिन अगर डॉलर में लगाए तो रुपए के सामने डॉलर का टिका रहना भी जरूरी है. Rupee should not depreciate, otherwise foreign investor will run in loss. भारत ने प्रपोजल आया था कि let's bifurcate our share market into rupee and foreign currency, but such proposal
was not pushed by government of India. So still we have single stock market in India where money can be invested in only domestic currency, that is rupee. जब इंडेक्स से कोई न्यूज आए, अब आज के डेट में इफ यू आस्क समबडी कि व्हिच रिप्रेजेंट्स इंडिया शेयर मार्केट आउटसाइड इंडिया, तो बड़ा कंफ्यूज आंसर मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी भी इसका करिश्मा हायर है और इसका करिश्मा लोअर है। अगर इस दोनों कंपेयर करिएगा तो इनका टर्नओवर इसके टर्नओवर के 1/3 है। ह्यूज टर्नओवर अगर शेयर, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है इसका, समझ रहे हैं ना। बट द important companies of India, if they want to see how their company is performing, they have listed their company here also, so they prefer BSE 30 more. There is a reason. Globally, all representative share indexes of developed world or any other country are all and all 30 share indexes. समझ रहे हैं ना। इस कारण से ये ग्लोरी इसको मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। 50 शेयर इंडेक्स आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल एक अमेरिका का है जो डॉ जोन्स है ना, डॉ जोन्स इज लाइक सेंसेक्स, name of index. Dow Jones is basically 30 share index of New York Stock Exchange, है ना, New York NYSE। मतलब कि डॉ जोन्स एक शेयर इंडेक्स का नाम है और वह 50 शेयर इंडेक्स नहीं है, 30 शेयर इंडेक्स है, ठीक है। तो 1 to 1 we can compare our BSE 30 with the Dow Jones of USA, but you will face difficulty if you compare NSE 50 with the Dow Jones of USA. तो एक्सपर्ट प्रेफर करते हैं सेंसेक्स को, दे अवॉइड निफ्टी, समझ रहे हैं ना। सेकेंड इसी तरह का एक है जापान का निक्केई, है ना, निक्केई इज अगेन 30 शेयर इंडेक्स ऑफ टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही हांगकांग का है हैंगसेंग, HANGSENG, हैंगसेंग। जर्मनी का है मिडडैक्स, वो भी 30 शेयर इंडेक्स है। यानी ग्लोबली रिनाउंड representative indexes of a particular country are all and all 30 share indexes. So it becomes easier for investors to compare India's BSE 30 with other similar kind of indexes. अब यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है कि सपोज ड्यू टू एनी रीजन एंड इंडेक्स हैज कम इनटू न्यूज, तो उस इंडेक्स का इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग इन न्यूज, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हम भी मुस्कुरा रहे थे, देखते हैं कि मेरा साइलेंट है कि नहीं, ठीक है। हाँ मेरा साइलेंट है, ठीक है। आई रिलीजियसली पुट इट ऑन साइलेंट मोड वंस आई इंटर द क्लासरूम। वही हम करते आते हैं, नहीं तो मेरा किसी राष्ट्रपति का फोन नहीं आता रहता, ठीक है। ये शेयर इंडेक्स की बात है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सी बात न्यूज में कितना रहा। देखिए 90% of the things which you see appearing in newspaper related to security market, they are not useful for you. 90%, समझ रहे हैं ना। अब rest of 10%, if you find they are kind of layman item which anybody can try to understand, or they are related to a large number of people, only then such kind of things will be asked in PT. Otherwise, security market has most number of concepts and ideas, and I don't think it will take less than 2 years to go through all concepts of security market, as many things are there, because practically applied terms, terminology, great many terms are there. Be careful कि if a term has come in news, तो you should be careful. For example, हाल में 2-3 साल पहले एक टर्म आ गया था शेयर वारंट, याद रहा है, थ्रू विच NDTV was taken over, है ना। अब एक ऐसा नहीं है कि शेयर वारंट कोई नई चीज है, बिकॉज शेयर वारंट केम इन न्यूज, तो यू आर सपोज टू नो
बट दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग इन पीटी। उसके बाद 3 पीटी हो गया, कुछ नहीं पूछा, बस उनकी मर्जी है कि नहीं पूछा तो नहीं पूछा। शेयर वारंट क्या होता है कि आई हैव ए लिस्टेड कंपनी, आई वांट सम मनी, है ना। तो टू टेक मनी इधर आई कैन बोरो फ्रॉम द बैंक और I can borrow it from another company by mortgaging my share. If I mortgage my share, that is a kind of secondary security, so I won't lose ownership if I am paying the borrower, paying the lender, the interest and the EMI. But one hybrid method is कि the company which issues share warrants, they ask for money not as a loan, neither as a share money, as if money is coming free. कि I need 500 crore rupees, I will pledge this much amount of share of my company to you, pledging. And you have to pay just 25% of share value now, against which I won't pay you anything, neither dividend nor any interest. कि suppose I need 250 crore rupees, so I will issue warrant of 1000 shares, 1000 crore rupees share. Price of share, कि in future you will have right to buy these shares at this price, और प्राइस तय आज हो गया. Till the guy who has given you money and who owns warrant not exercising his power of warrant, you are owning your share. But the day he exercises कि now I need share, तो you need to sell. समझा रहा है? You need to sell the shares to that particular guy whom you have issued share warrants. That is known as exercising the right of share warrant. यही शेयर वारंट एनडीटीवी ने इशू किया था दो इंडिपेंडेंट कंपनी को, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनीज इन ए वेरी डिस्टेंट वे. माने डायरेक्ट दे वर नॉट द रिलायंस कंपनीज, लेकिन अल्टीमेटली दे वर अंडर द ओनरशिप ऑफ रिलायंस. समय बदला, लॉयल्टी शिफ्ट हुआ, उस दो कंपनी ने शेयर वारंट को दूसरे को बेच दिया और उससे अदानी ने शेयर वारंट खरीद लिया और खरीदा और पावर एक्सरसाइज कर दिया. बिकॉज देयर वाज नो पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन एनडीटीवी कंपनी एंड अदानी, क्योंकि लॉयल्टी शिफ्ट हो गया और वो अपने कंपनी को सेव नहीं कर सके. आपने जो 25% शेयर का पैसा लिया है, when you issued share warrant, you can get your share warrant back by paying money. लेकिन आप वेट कर रहे हैं. इन द मीन टाइम द ऑनर ऑफ शेयर वारंट डिसाइडेड टू एक्सरसाइज द राइट टू शेयर वारंट. तो यू हैव नो उपाय, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको अपना कंपनी लूज करना पड़ेगा. उसने शेयर वारंट इशू किया, शेयर आ गया, लेकिन तकरीबन 4% शेयर कम था ऑटोनॉमी के लिए. बस उसने अनाउंस कर दिया कि इतने का शेयर है, हम इतने में खरीदने को तैयार हैं. बस इंडिविजुअल शेयर होल्डर बेच देता है शेयर और रातों रात कंपनी टेक ओवर हो जाती है. समझ रहे हैं ना? तो शेयर वारंट न्यूज में था, तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, it is your duty to know कि what exactly share warrant are. But we cannot guess today कि what will come in news tomorrow. And in that process, we can't be studying all terms, terminology of stock exchange, because for term, if you find dictionary of economics of this thickness, the dictionary of a stock market this thickness, माने पूरा अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक डिक्शनरी इतना पतला है, स्टॉक मार्केट का इतना मोटा है. माने वन होल वर्ल्ड इज देयर. बट वी हैव टू बी क्लियर कि द थिंग्स व्हिच मेक न्यूज, वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स और सिंपल. If they are simple, chances are more to be asked. If they are very complex, belonging to a particular specific area, तो chances are very less कि क्वेश्चन पूछा जाएगा. समझ रहे हैं ना? लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. This is to the extent security market is concerned. Rest of the things study. If you face any difficulty, just come in my contact. Okay? इंडेक्स में जो वेटेज है
वो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड या ट्रेडेड के ट्रेडेड। तो वो चेंज डेली होती है उसके अंदर कंपनी डेली नहीं, कुछ कुछ दिन पे कंपनियां रिवाइज करती हैं। जैसे उन्होंने टेल्को को कभी कोई खास वेट दिया और टेल्को के शेयर की ट्रेडिंग ओवर द टाइम वेंट डाउन, तो दे माइट डू अवे विद टेल्को और दे डाउनवर्ड रिवाइज द वेट। तो बचा हुआ वेट किसको देंगे? तो उनको पता होता है डाटा कि विद द वेट गॉन। अब टेल्को के बदले वोल्स वैगन को चला गया वेट बिकॉज देयर सेल वेंट अप, महिंद्रा दे वेंट अप। हो सकता है कि ऑल टुगेदर किसी कंपनी को ही बाहर निकाल दें एंड रिप्लेसिंग विथ अनदर कंपनी। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ए कंपनी विद द हेल्प ऑफ अनदर कंपनी डजंट मीन कि दैट कंपनी बिकेम लेस इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट बाई इस शेयर। ये इनका अपना मैथमेटिक्स है कि हाउ इज द वेट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शिफ्टिंग, कि भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट कर रहा है। जैसे जो कंपनी सब है, अगर वो कंपनी अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल न बनाए तो उनको बाहर निकल जाने का खतरा है, क्योंकि 6 ऑटोमोबाइल कंपनी होगी, 6 का 6 है डीजल पेट्रोल। अब कंपटीशन होगा ईवी, तो ये सब की सब ईवी में इंटर कर रही हैं। नहीं तो 3 रह जाएगा डीजल पेट्रोल, 3 हो जाएगा ईवी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि दे हैव टू प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन कि विच शेयर्स आर ट्रेडिंग and volume of which company is higher or lower. You should get logic also, you should get reason also. समझ रहे हैं ना? ऐसे होता है इसमें। तो दिस इज अबाउट स्टॉक मार्केट। हाँ, किसके बारे में था? बियर। हाँ, कुछ नहीं है। शेयर बाजार में बेयर और बुल होता है ना, बेयर बुल होता है ना। तो जब बेयर चल रहा है तो प्राइस डाउन जा रहा है और बुल है तो प्राइस ऊपर जा रहा है। क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं दे बिहेव लाइक ए बुल एंड दे बिहेव लाइक ए बेयर। समझ रहे हैं? ऐसे देखिए, ये बेयर बुल ही क्यों कहते हैं हम लोग? तो जो बेयर होता है ना, उसके पास हॉर्न नहीं होता। वो जो भी अटैक फटैक करता है मुंह से ही करता है। समझ रहे हैं ना? और जब बुल होता है उसको अटैक मुंह से नहीं करता, दे डू विद द हेल्प ऑफ देयर हॉर्न, है ना? तो बेयर और बुल में देखेंगे कि बुल जब किसी पे अटैक कर रहा है तो उसका भी माउथ ऐसे नीचे की तरफ होगा, है ना? ये आंख है इसका, ठीक है? दोनों अटैकिंग मूड में है। ये बेयर है तो ये जो वार करेगा इसी मुंह से करेगा, और ये मुंह नीचे करेगा और वार करेगा हॉर्न से। तो ये फॉलिंग शेयर मार्केट है और ये राइजिंग शेयर मार्केट है। यही है बेयर एंड बुल। सिंपल सी कहानी है, समझ रहे हैं ना? कि when bear attacks they also keep their mouth downward but their attacking weapon is their mouth। वो दांत से थूथन से धक्का मार देंगे आपको। समझ रहे हैं ना? और इनका क्या होता है कि मुंह से कुछ नहीं करते, लेकिन मुंह इनका भी डाउनवर्ड होता है। ये अटैक करते हैं हॉर्न से। तो राइजिंग शेयर मार्केट मीन्स बेयर मार्केट एंड फॉलिंग शेयर मार्केट मीन्स राइजिंग शेयर मार्केट विद बुल मार्केट एंड फॉलिंग शेयर मार्केट विद बेयर मार्केट। सुनिएगा, तब बेयर क्रीप कहते हैं जब, तो मतलब है कि प्राइसेज आर फॉलिंग बट नॉट वेरी फास्ट, स्लोली, एज इफ बेयर इज क्रीपिंग, धीरे धीरे धीरे। ठीक है? और एकाएक मार्केट स्लम्प हो गया, अब फिर कल उठ गया। तो जब मार्केट धीरे धीरे गिर रहा हो दैट इज मोर डेंजरस, माने समथिंग इज रस्टिंग द मार्केट फ्रॉम इनसाइड। difficult to know the reasons behind this fall. People might be losing confidence, this and that, बहुत सारा अटकलबाजी होती है। But if a market has gone down, it is easier to find out the cause कि क्या हुआ है आज। तो कोई डाटा ग्लोबल आ गया है, इंडिया का आ गया है, जिस कारण से नीचे गिर गया है। जैसे कि अभी एकाएक न्यूज आ जाए कि मुकेश अंबानी व सीनेन फलाना हॉस्पिटल, बस RIL का शेयर नीचे आ जाएगा। बस देखते देखते हजारों कंपनी का शेयर नीचे आ जाएगा। शाम में आ जाए कि भाई अस्पताल उन्हीं का है, अस्पताल में घूमने गए थे, इलाज कराने नहीं गए थे, फिर प्राइस ऊपर आ जाएगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स ऑन स्पेकुलेशन, योर परसेप्शन।
इस परसेप्शन पे वर्क करता है। अब इसमें जरा सोचिएगा कि एक ब्रोकर है जिसे कह रहे हैं अब बुल, और एक ब्रोकर को कह रहे हैं बेयर। तो almost all brokers operating in share market are bull and bear both. If they are purchasing some share, so they must be having hope that its price will go up. So that broker is bull for this share. But to purchase share, they need cash. So they must be selling some shares because they are afraid that price will crash. The same broker is selling some shares, he is bear for those shares, and he is buying some shares, he is bull for that share. Over the experience, over the time, out of experience, some broker emerge as experts of bull market and some emerge as experts of bear market. दोनों प्रॉफिट बुक करते हैं, एक गिरते बाजार से और एक चढ़ते बाजार से। इसी में हर्षद मेहता था बुल एक्सपर्ट, और उसका नाम था ग्रेट बुल। माने जिस शेयर को छुआ उसका प्राइस बढ़ने लगा। ऐसा समझिए कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बड़े बड़े शेयर ब्रोकर के परिवार घराने जो अपना दिमाग लगाते थे, दे हैड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लेकिन 11-12 बजते बजते अपना अकल छोड़ के चुपचाप करते थे, भाई हर्षद जो कर रहा है वही करो, तो और उसका सही हो जाता था। बिकॉज द शेयर्स ही इज परचेजिंग, इफ एवरीबडी वांट्स टू परचेज, तो यू आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, प्राइस जल्दी बढ़ जाएगा ऊपर। अब पूछिए आप, है ना, तो ये बेयर एंड बुल का कहानी है। नहीं समझे, इन्वेस्ट किस में करेगा? हाँ हाँ, बट सिंपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर इज देयर, हाँ, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। हाँ नहीं नहीं, इन्वेस्ट एनएस से बीएस से नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक में। इफ दैट स्टॉक इज देयर पिक, तो दे विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक. That stock might be listed only at NSE, only at BSE, or at both the places. If it is listed at both the places, so they have more lucrative market. Quicker liquidity will be available. जो दो स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ नहीं तो वहाँ बेच लीजिए, यहाँ बायर की कमी होगी तो वहाँ बायर की कमी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। बट ही विल पिक फर्स्ट कंट्री, ग्लोबल इन्वेस्टर्स पिक फर्स्ट कंट्री एंड देन इनसाइड ए कंट्री स्टॉक। जैसे हमारे आपके लिए, अब तो हम भी बाहर निवेश कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी एक स्टॉक मार्केट में, लेकिन एज फॉर अस फ्यू कंपनीज आर देयर इन इंडिया इन विच वी इन्वेस्ट। फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉर देम देयर इज फर्स्ट कंट्री कि किस देश में मनी ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है, नेचुरली विच हैज गॉट हायर ग्रोथ रेट। तो आप इंडिया, चाइना ऐसे निशाने पे है, हाई ग्रोथ रेट है। अब नाउ इन हाई ग्रोथ कंट्रीज, नो इन्वेस्टर विल पुट ऑल मनी इन वन कंट्री, तो वो थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो यहाँ वहाँ डालेगा। अब नाउ दे विल डिसाइड कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन फार्मास्यूटिकल, तो व्हाट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, व्हाट टू इन्वेस्ट इन चाइना, व्हाट टू इन्वेस्ट इन हांगकांग। नाउ दे इंटर कंट्री एंड देन दे पिक एंड सेलेक्ट द पोर्टफोलियो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिर वो लेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, कितने दिन में। तो दिस इज हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट देयर इन्वेस्टमेंट इनसाइड मेनी ऑफ द पोर्टफोलियो, because they have got choice to invest in debt market also. Government debt is there, corporate debt is there, कहीं भी कर सकते हैं। That is their choice कि what they actually can do. According to IMF, at present there are just 6 companies at global level who can pump in $1,500 billion within seconds in any stock market of world, within seconds. So once they are entering your country, you are happy, but they can leave also very fast. जब वो छोड़ेगा तो बर्बाद करके आपको जाएगा, है ना। यही जो बर्बादी नहीं झेल पाया, वही हो गया साउथ ईस्ट एशिया करेंसी क्राइसिस 96-97। वो डूब गए थे इसी चक्कर में, पैसा आता गया, दोनों हाथ से खर्च करते चले गए, और जब वो छोड़ना चाहा तो फॉरेन करेंसी नहीं था, वहां का सेंट्रल बैंक रात में सरेंडर कर दिया कि वी हैव नो फॉरेन करेंसी। फिक्स करेंसी सिस्टम से देन एंड देयर चले गए सारे देश फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम से। और एक बार जब करेंसी डिप्रिसिएशन शुरू हुआ तो $1 अमेरिकन वाज इक्वल टू
35 Malaysian currency. Within 3 months, it was 17,500 Malaysian currency. Within 3 months. क्योंकि ये आर्टिफिशियली सपोर्टेड करेंसी रेट था, रियल करेंसी रेट नहीं था, है ना। हमने इसको अपना लिया था 97 में, हम लोग बाल बाल बच गए 93 में, कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम फिक्स टू फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम इन 93 94 इटसेल्फ, तो वी गॉट समहाउ सेफ्ड, समझ रहे हैं ना।